हेलो फेलो एस्पिरेंट्स। लास्ट सेशन में हमने लैंड रिफॉर्म डिस्कस किया था एंड एट द एंड वी वर लेफ्ट विद वन क्वेश्चन। आई होप यू हैव गॉन थ्रू इट। द क्वेश्चन वाज एस्टैब्लिश द रिलेशनशिप्स between land reforms and agricultural productivity and elimination of poverty in the Indian economy. Discuss the difficulties in designing and implementation of agricultural friendly land reforms in India. So this question has two parts. The first part till here is part of GS3 economy, and the part from here to here is your GS2 related to governance, that is your design and implementation. This is given your GS2 syllabus. So this question is a combination of both of these 2 points. So we will start discussing the answer of this, and through this we will learn how having the knowledge or having the notes prepared of one part of your syllabus can help you in the next GS paper. So the intro of the question, this can be started with by combining the keywords and establishing the interrelation between what is given in the question, right? That in the post independence land reform, उसका एम था इक्विटेबल लैंड डिस्ट्रीब्यूशन करना, सो दैट वी कैन इंक्रीज द एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी विच विल लीड टू इंक्रीज्ड एम्प्लॉयमेंट एंड अल्टीमेटली रिडक्शन इन द पॉवर्टी विद इन द इंडियन इकोनॉमी. नाउ व्हाट यू हैव डन इज यू हैव जस्ट यूज्ड द कीवर्ड्स गिवन इन योर क्वेश्चन इटसेल्फ एंड यू हैव इंटरकनेक्टेड इट टू मेक ए बेसिक इंट्रोडक्शन. अगर करंट अफेयर्स में कुछ चल रहा है या कोई नई पॉलिसी आई है लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड, सो यू कैन यूज दैट ऑल्सो एंड पुट इट एज एन इंट्रोडक्शन. Post the introduction, you will be moving to the body, and here you will connect the land reforms with agricultural production and poverty elimination, and how it has helped land reform. That is these 4 points in the post-independence India. That is your zamindari abolition, land ceiling, tenancy reforms, and land consolidation. How they have helped in increasing agricultural productivity and poverty elimination. Now what you have to do here is कि कोई separate points नहीं create करने हैं नए. हमने जो भी last session में discuss किया था positives of all of these 4 points, that is जमींदारी एबोलिशन, लैंड सीलिंग, टेनेंसी रिफॉर्म्स एंड लैंड कंसोलिडेशन. इनके जो पॉजिटिव्स हैं उनको बस इन 2 पॉइंट से रिलेट करना है कि हाउ दे हैव हेल्प्ड. यू डू नॉट हैव टू क्रिएट एनी न्यू पॉइंट्स इफ यू डू नॉट रिमेंबर, एंड ऑल यू हैव टू डू इज कि यूज दोस पॉइंट्स इटसेल्फ टू जस्टिफाई कि हाउ दे हैव रिजल्टेड इन इंक्रीज्ड एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड पॉवर्टी एलिमिनेशन. एंड दैट्स इट. दैट इज हाउ यू विल कनेक्ट how they have benefited or ensured increased productivity and poverty elimination. Same works with difficulty in designing and implementation. Ab this is your GS2. अब दिस इज सो स्टैटिक इफ यू सी इट, बिकॉज गवर्नमेंट की हर जो पॉलिसीज होती हैं, राइट, वट एवर द पॉलिसीज आर, स्कीम्स आर देयर. अब ये हर साल नई नई स्कीम्स आती हैं, तो आप कितना फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मेमोराइज कर पाओगे हर स्कीम से रिलेटेड इशूज एंड चैलेंजेस. सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि बेसिक इन्फॉर्मेशन जो भी स्कीम न्यूज़ में चल रही है उसकी एकदम बेसिक इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करो एंड क्रिएट few points out of those schemes, and after that you have to follow one framework related to government schemes or policies which you can apply in analyzing all of them. So that is what I have created for GS2 related to design and implementation, which you can apply with respect to any of the government policies and scheme. So this is what we will do right now. ठीक है कि लिमिटेशंस अब डिफिकल्टीज क्या एग्जिस्ट करती हैं लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड जो हमने डिज़ाइन करी हैं पॉलिसीज. यू कैन आंसर इट इन 2 वेज. फर्स्ट ऑफ ऑल, जो भी लिमिटेशंस हमने चारों लैंड रिफॉर्म से रिलेटेड लिखा था उन चारों लिमिटेशंस को आप लिख दो, एंड दे विल बी नथिंग बट द लिमिटेशंस एसोसिएटेड विद द क्वेश्चन व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन. And the second approach is following the keyword design and implementation. Whatever points you have prepared, you have to just relate it to the agricultural land reforms. And that's it. That is how you can write the answer by jotting down these 2 points. So this approach is possible when you have already prepared the points related to positives and negatives of all four land reforms. And this is what you can do when you have prepared the further points and you can relate it to any part of the question that is given. Okay. And then comes the way forward related to same what can be done, the general points or the field specific points or the steps taken. This has not been asked, but still 1-2 points you will mention. This creates an extra dimension, right? And gives a positive outlook, futuristic outlook to your answers as an aspirant. So general points, or you can talk about there are that already we have taken some steps. Digital digital information relating to your land reform data. LARA 2013, which has replaced Land Acquisition Act of 1894, FRA 2006, right? Ensuring individual forest rights and community forest rights. So like this, you have just mentioned, you will mentioning the positive sides of it, that few steps have already been taken, and if we improve some issues, it can be implemented effectively, right? And the futuristic conclusion, or any of the above problem solving conclusion, or whatever is going on in the current affairs related to land reforms in a positive light, that can be put, okay, and your conclusion can be written. So this is the gist of it. Intro में what you have to do is कि relate land reforms
to whatever is given in the question, and here it is what? Agricultural productivity, and second is your poverty elimination. Okay, then in the body you will relate ki how this has helped in doing this by stating the 4 land reform initiative taken by the government and the positives of them, which has led to both of this increase in agricultural productivity and reducing the poverty. After that you will be writing the issues क्या आ रहे हैं गवर्नमेंट को ऐसी पॉलिसी के डिजाइन और इम्प्लीमेंटेशन में लैंड रिफॉर्म के which is not helping it to achieve this goal. Then what you have to do is write the negatives of all the 4 land reforms. After that you can write about the steps taken along with the way forward, 1-2 points each, and you will be done with the conclusion. So this is how you can write the answer to this question. Now the crux of the entire discussion is, if you have prepared the basic fodder points related to what is given in the syllabus, because they have stopped asking the direct question and now they have started to interconnect more and more with respect to different part of the paper. So if you have created basic fodder point for any paper, GS2, GS3, what you have to do is interconnect them and create a new answer. So this is what you need to ensure. Now let's start discussing about the thing that we were talking about, जो framework मैंने बनाया है regarding design and implementation, which is given in your GS syllabus 2, and how this can help you to ensure that you memorize less, remember more, and do not write any random points. So this is what we will do right now, and we will discuss the framework. So this is the part of your syllabus of GS2 which is given in the government policies, intervention for development in various sectors, and issues relating out of their design and implementation. Understand, here are 4 important words are there. Ki what do you understand by government policies? What do you understand by sectors? And then the main issue, design and implementation, for which we have created a framework. Okay, so the government policy, let's start with this. ठीक है, the policy, government policy, public policy is nothing but a framework of laws, regulations and actions, ठीक है, which government implements to achieve social and economic goals. Social and economic goals क्या है? Nothing but what is given in your DPSP. So we try to achieve that, like reducing hunger, poverty, increasing education, ठीक है, promoting health of the people, right? This is what we have to achieve at the end for entire population and specifically the vulnerable section. This is what we have to do. And to be able to do that, we need to create a policy, ठीक है, which will ensure how we can achieve it, ठीक है, and if there we are not able to achieve it, what are the reasons because of which we are unable to achieve it. So for this you should be able to know what are the stages of public policy making. ठीक है, फर्स्ट इज योर एजेंडा सेटिंग, दैट मीन्स आप किस बारे में पॉलिसी बना रहे हो, ठीक है, उसके बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए. अब जब आप पॉलिसी बना रहे हो, ठीक है, क्लैरिटी है, देन यू स्टार्ट मेकिंग द पॉलिसी टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ इट बाय कंसल्टिंग एवरी स्टेक होल्डर, अंडरस्टैंडिंग द नीड ऑफ द पीपल, एक्सपेक्टिंग सम आउटपुट, राइट. तो ये सब आप फॉर्मुलेट करते हो. देन यू अडॉप्ट द पॉलिसी. देयर आर इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज, स्पेसिफिकली वी the future bureaucrats जो होते हैं, they are the one who ensure in implementing these policies and at the end give the feedback to the government, ठीक है, they evaluate it and they suggest further what improvement can be made. So these are the processes that are involved in the policy making. Now you can remember this all these stages by having this mnemonics with you, AFE, ठीक है. This is what I use to remember each and every stages. It becomes easy to write any points. Now अब गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाएगी वो किसके लिए बनाएगी, ठीक है, फॉर डेवलपमेंट इन वेरियस सेक्टर्स. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय वेरियस सेक्टर्स? दे आर नथिंग बट प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी. प्राइमरी बीइंग एग्रीकल्चर एंड माइनिंग, इंडस्ट्री एंड मैन्युफैक्चरिंग एंड द सर्विस. नाउ इफ यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली, the land reform question is related to nothing but the primary sector. Within that there is agriculture, and what are the issues related to design and implementation, ठीक है, while making any policy. And what is the policy? Policy is regarding land reform. So this is simply what is given in your GS2 paper, which is used in GS3 by connecting it to land reform, because it is nothing but a policy that the government is making to achieve an objective. An objective is increase agricultural productivity, right, and to reduce poverty. So यही सवाल था बस, और इसके लिए ये अंडरस्टैंडिंग जरूरी है जो सिलेबस के पॉइंटर्स दिए हैं. दैट्स इट. ओके, सो वी डिस्कस्ड व्हाट डज पॉलिसी मीन, व्हाट do we mean by the different sectors that is given in your GS2. Along with this, now we will talk about design and implementation. What will be the framework related to it, and how we can ensure that we can write good point and do not write random points.
So the framework that I've created for this is issues related to design is 4 coders fail. So these are the combination of 14 points that you can have with you if you remember this code, right? F is for fragmentation. अब what does this mean? गवर्नमेंट को जब एक पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होती है तो इट विल बी बेटर इफ दे हैव वन मेन बॉडी, राइट, हु कैन टेक डिसीजंस and ensure that the policy is implemented in a consistent and in an effective way. But this doesn't happen. क्यों नहीं होता है? ठीक है, बिकॉज बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस इंप्लीमेंट करने एक ही पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए लगी होती है, जिसकी वजह से सेम काम बहुत लोग करते हैं, रिपीटेशन ऑफ वर्क होता है एंड देयर इज अंडर परफॉर्मेंस. फॉर एग्जाम्पल, जब हम एयर पोल्यूशन गवर्नेंस की बात करते हैं, ठीक है, दिल्ली में, तो देर आर ग्रेटर देन 15 एजेंसीज इन्वॉल्व, ठीक है, टू कंट्रोल द एयर पोल्यूशन. फॉर एग्जाम्पल, CAQM, CPCB, DPCC, योर MCDs, लाइक स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स, एक्सेट्रा. अब जब इतनी बॉडीज इन्वॉल्व हो जाती है, ठीक है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है सबके बीच में. लेकिन जब रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर हो जाती है और कोई प्रॉब्लम आता है, राइट, तो नो बडी कम्स फॉरवर्ड टू टेक द अकाउंटेबिलिटी. लेकिन जब अकाउंटेबिलिटी इंश्योर ही नहीं हो सकती, तो व्हाट हैपेंस इज दैट द इम्प्लीमेंटेशन बिकम्स वीक. सो अगर ये डिज़ाइन में ही फ्लॉ होगा कि ग्रेट मोर देन 15 एजेंसी को इन्वॉल्व कर लेंगे हम एयर पोल्यूशन गवर्नेंस में, तो अकाउंटेबिलिटी ही नहीं हो पाएगी एंड देयर विल बी अ पुअर इम्प्लीमेंटेशन of the policy. Okay, so this is what we mean by the fragmentation. Now the second is over optimistic targets. The best example is government is planning to introduce EV vehicles, right, full fledged तरीके से. बट ये प्लानिंग करने की हम बात कर लेते हैं, फुल फ्लेज तरीके से करना है, बट राइट नाउ हमारे पास बैटरी का इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, राइट, हमारे पास सॉरी बैटरी के लिए हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी नहीं है, हमारे पास चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एग्जिस्ट नहीं करता है, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, द मिनरल्स दैट इज यूज्ड इन दिस इज द क्रिटिकल मिनरल्स, बेसिकली योर लिथियम, राइट, ऑल दीज थिंग्स विच आर वेरी बेसिक फॉर दिस हमारे पास नहीं है, और हम ईवी में फुल ऑन कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, कि ईवी में शिफ्ट हो जाए, विच इज़ नॉट पॉसिबल. तो अगर अगेन सेम डिज़ाइन में इशू है तो इम्प्लीमेंटेशन में इशू होगा. द फॉर्मेट विल रिमेन द सेम. द नेक्स्ट कोड ऑफ द 4 कोडर्स फील्ड इज यू, दैट इज यूनिफॉर्मिटी, वन साइज फिट्स ऑल अप्रोच. ARC2 ने भी बोला था, जो सिटीजन्स चार्टर है उसमें सबसे बड़ा इशू ये है कि जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे डिपार्टमेंट का कॉपी पेस्ट कर लेते हैं विदाउट अंडरस्टैंडिंग द स्पेसिफिक नीड्स ऑफ दैट डिपार्टमेंट. द नेक्स्ट वन इज रूल्ड एंड डेलीगेटेड लेजिस्लेशन. ठीक है, अब हम एक अथॉरिटी दूसरी अथॉरिटी को लेजिस्लेशन बनाने के लिए दे देती है, ठीक है, एंड देयर इज नॉट प्रॉपर डेलिब्रेशन बिटवीन द टू और अमंग द लॉ मेकर्स हु आर मेकिंग दीज पॉलिसीज, रिजल्टिंग इनटू इनइफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशंस. देन कम्स योर कंफ्यूजिंग और इनएडिक्वेट डेफिनेशंस. जैसे कि पॉवर्टी लाइन को डिफाइन करने के लिए बहुत सारी कमिटीज आई, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट रिकमेंडेशंस दी, बट अभी भी हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कौन पुअर है. नाउ देयर इज न्यू नीति आयोग मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स. तो इसकी वजह से क्या होता है, इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉग्नाइज हु आर योर टारगेट बेनिफिशियरीज, हाउ विल यू मेक द पॉलिसी एंड हाउ विल यू इंश्योर यू कैन अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव्स, राइट. सेम गोज व्हेन वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन ऑफ फार्मर्स. जब भी गवर्नमेंट हिस्टोरिकली, राइट, कोई भी जब बेनिफिट्स देती थी किसी भी प्रोग्राम्स का, तो उस डेफिनेशंस में से जो लैंडलेस फार्मर्स हैं, राइट, जिनके पास कोई लैंड नहीं है, उनको इंक्लूड ही नहीं किया जाता था, लैंडलेस एग्रीकल्चरल लेबर फार्मर्स को, फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ फार्मर्स. इस वजह से वो जो गवर्नमेंट की बेनिफिट्स थी, स्कीम्स थी, उनसे एक्सक्लूड हो जाते थे. द नेक्स्ट वन इज ऑपरेशनल कन्वीनियंस फॉर कोडर्स. C is for confusing or inadequate definition, O is for operations. Operational convenience is more than the public needs. क्यों? अब ब्यूरोक्रेसी जो होगा वो जिस प्रोसेस से कंफर्टेबल है, दे इंश्योर, राइट, कि वो प्रोसेस चेंज ना हो, बिकॉज अगर प्रोसेस चेंज होगा दे विल हैव टू लर्न, और उनके लिए प्रॉब्लम्स होगी. इवन दो पब्लिक के लिए आसानी होगी, ठीक है, बट दे डू नॉट चेंज द प्रोसेस, दे आर वेरी रेजिस्टेंट टू इट बिकॉज ऑफ देयर स्टेटस कोइज्म अप्रोच, ठीक है, एंड दैट कैन बी सीन बेस्ट इन ई गवर्नेंस. ई गवर्नेंस अभी भी आ गया है, बट बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो अभी भी इसको नहीं अपना रहे हैं, एंड दे आर स्टिल फॉलोइंग द बेसिक मैनुअल फेस टू फेस वर्क, एंड दिस इंक्रीजेस द चांसेस ऑफ योर करप्शन. देयर आर डेटा गैप्स, ठीक है, दैट मीन्स या तो हमारे पास डेटा नहीं है कंसिस्टेंटली, ठीक है, और अगर डेटा है भी तो वो क्वालिटेटिव डेटा नहीं है. फॉर एग्जांपल, किसी भी गवर्नमेंट स्कीम, ठीक है, जैसे हो गया मनरेगा, ठीक है, लास्ट ईयर वो चेंज होके हो गया है VB जी राम जी, राइट. अब मनरेगा के लिए अगर हमको बेनिफिशियरी देखना है कि कौन आएगा जिसको हम काम पे रखेंगे, एंड वी विल गिव देम
द डेली वेजेस, ये कैसे डिसाइड होगा? तो आज भी ये 2011 के सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस डेटा से हम यूज़ करते हैं और वो बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई करते हैं। और ये आज 15 साल से ऊपर हो गए हैं, हम सेम डेटा यूज़ कर रहे हैं। उसमें से कई लोग जो हैं वो पॉवर्टी के या तो बाहर आ गए हैं, या नए लोग जो हो गए हैं वो उसमें इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जिसके हमारे पास कोई क्लैरिटी नहीं है। तो समटाइम्स जो बेनिफिशियरी है, राइट, जिसको नहीं मिलना चाहिए कभी-कभार काम उसको मिलता है, और जिसको मिलना चाहिए उसको काम नहीं मिलता है, लीडिंग टू इनइफेक्टिव पब्लिक सर्विस डिलीवरी दैट इज़ प्रोवाइडिंग देम 100 days and right now 25 days of employment, guaranteed employment. Understood? The last is कि अब जितने भी डिपार्टमेंट्स है दे आर हेडेड बाय जर्नलिस्ट, द ब्यूरोक्रेट्स। एंड आजकल जो नए चैलेंजेस आ रहे हैं, साइबर थ्रेट्स, एआई का एवोल्यूशन, उसके लिए व्हाट वी नीड इज द एक्सपर्ट्स, स्पेशलिस्ट इन दिस फील्ड। रेगुलेटरी जार्गन्स जो आम आदमी के समझ में बाहर होते हैं, जो कोविड के टाइम में जब भी प्रॉब्लम्स आती थी तो न्यू नोटिफिकेशंस आती थी जो समझ पाना पॉसिबल है, और स्पेसिफिकली फॉर द पीपल हु आर नॉट एजुकेटेड लिविंग इन द रूरल एरियाज। देन द स्टेक होल्डर्स कंसेंट इज एब्सेंट। जब 2022-20 में फार्म लॉज आया था तो डिफरेंट फार्मर ऑर्गेनाइजेशन से गवर्नमेंट ने कंसल्ट नहीं किया था, विच लेड टू द वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट एज वी डिस्कस्ड। एंड अल्टीमेटली उन्हें उन्हें 3 फार्म लॉज जो हैं वो वापस लेने पड़े थे। ठीक है, सो अगर डिज़ाइन में ही फ्लॉ है, देयर इज़ नो स्टेक होल्डर कंसल्टेशन, तो चांसेस ऑफ देम बीइंग इम्प्लीमेंटेड विल बी फार फार लेस, राइट? एंड द लास्ट इज योर फेल अप्रोच। इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 पॉइंट्स। फॉर्मुलेशन फ्लॉ होता है, क्यों होता है? बिकॉज एब्सेंस ऑफ इंटरसेक्टोरल कोऑर्डिनेशन व्हाइल डिजाइनिंग इट, which is nothing but incomplete consultation from the interdepartmental people and lack of public private partnership, जिसके लिए private participation, जिनके लिए हम स्कीम implement करने की कोशिश कर रहे हैं, डिजाइन करने की कोशिश कर रहे हैं। So this is your 4 coders fail framework for issues related to the design. Now let's talk about the issues related in the policy implementation, and the code for that is smart cog wheels. S is for your sensitization of frontline workers is inadequate. अब इसका मतलब क्या है कि फॉर एग्जांपल एफआरए में इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स होता है एंड कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स होता है, एंड टू क्लेम द फॉरेस्ट राइट यू हैव टू प्रेजेंट सम डॉक्यूमेंट्स, एंड बेसिक ऑफ देम इज फर्स्ट इज योर आइडेंटिटी प्रूफ, देन रिलेटेड टू योर लैंड, ये डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करने होते हैं, बट इनिशियल डॉक्यूमेंट्स ये होती है। तो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल्स होते हैं जो इंटरफेस में होते हैं ट्राइबल्स के साथ, अब उनके लिए आईडी जो है, अब ऑप्शन होता है कि या तो आप आधार लेके आ जाओ या और कोई गवर्नमेंट आईडी जो आपको इशूड है आप वो दिखाओ एंड यू कैन आइडेंटिफाई योरसेल्फ। बट ये फॉरेस्ट ऑफिशियल्स जो होते हैं वो प्रॉपर्ली ट्रेन्ड नहीं होते हैं, सेंसिटाइज नहीं होते हैं, क्योंकि हर किसी के पास हर एक डॉक्यूमेंट नहीं होती है। एंड प्राइमरीली इफ दे सी द पर्सन डज नॉट हैव आधार कार्ड, दे आउट राइटली रिजेक्ट देयर क्लेम, और उनको वो एंटर ही नहीं करते हैं क्लेम को। ठीक है, डिस्पाइट दे कैन यूज एनी गवर्नमेंट आईडी टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ। सो दिस इज योर वन एग्जांपल ऑफ लैक ऑफ सेंसिटाइजेशन ऑफ फ्रंटलाइन वर्कर्स, वो डिफिकल्ट कर देता है पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। सेकंड इज कि मैन पावर की कमी है। अब देखो, पहला है कि मैन पावर की कमी है, और दूसरा है कि जो मैन पावर है वो टेक्निकल नहीं है और अनस्किल्ड है, जिसकी वजह से जितने भी स्पेशलाइज्ड टास्क होते हैं ना, वो हम प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए फिर बहुत वेट करना पड़ता है, बहुत एनालाइज करना पड़ता है, विच रिजल्ट्स इन डिले इन पब्लिक सर्विस डिलीवरी। नेक्स्ट इज अवेयरनेस ऑफ द सिटीजन इज वेरी लेस। ठीक है, हमने टेनेंसी रिफॉर्म के बारे में जब पढ़ा था लास्ट टाइम, उसमें वही फार्मर्स बेनिफिट कर पाए थे। ठीक है, वो वर अवेयर अबाउट व्हाट इज गोइंग ऑन इन रेस्ट, बाकी किसी को पता नहीं चला, दे कुड नॉट यूज द बेनिफिट्स ऑफ इट। देन योर रेड टेपिज्म दैट वी डिस्कस्ड ऑलरेडी। देन टारगेट एरर्स, बेनिफिशियरी इंक्लूजन एक्सक्लूजन एरर्स, द फेमस केस ऑफ झारखंड वुमन हाउ शी डाइड, ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्कीम्स रिजल्टिंग इनटू नो फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, एग्जांपल सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। अब जो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स होती हैं, ठीक है, वो डिज़ाइन तो गवर्नमेंट ही करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट, राइट, बट उसका फंडिंग का मैकेनिज्म या तो 60-40 होता है नॉर्मल स्टेट्स में, या 90-10 होता है नॉर्थ ईस्ट और हिली स्टेट्स में, 100% विद रिस्पेक्ट टू यूनियन टेरिटरीज, तो यहाँ तो कोई इशू नहीं है। बट इन दीज टू एरियाज, और स्पेसिफिकली द 60-40 जिसमें स्टेट गवर्नमेंट 40% फंडिंग देता है, दे शुड हैव द राइट, ठीक है, जब पॉलिसी डिज़ाइन हो रही है, राइट, सो दैट दे कैन बी इम्प्लीमेंटेड इफेक्टिवली, बिकॉज हर स्टेट की जो नीड होती है वो डिफरेंट है। सो अकॉर्डिंगली देयर शैल बी सम फ्लेक्सिबिलिटी इन इम्प्लीमेंटेशन। अगर डिज़ाइन में भी कंसल्टेशन नहीं हुआ है तो इम्प्लीमेंटेशन में फ्लेक्सिबिलिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, जो एग्जिस्ट नहीं करती है। ठीक है, अल्टीमेटली रिजल्टिंग इनटू इनइफेक्टिव सर्विस डिलीवरी। देन द गवर्नेंस फेलियर, द लैप्स फ्रेमवर्क दैट इज नथिंग बट लीगल, administrative, political, social and economic. This framework that you can use to justify any of the problems in the implementation of government policies, schemes, programs. Workforce shortage, 7th pay commission report, right? Hierarchy conflict, politically driven policies. What does this mean? जनरली क्या होता है कि गवर्नमेंट डिज़ाइन करती है एंड ब्यूरोक्रेट जो होते हैं इम्प्लीमेंट करते हैं, फिर वो फीडबैक मैकेनिज्म देते हैं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, सो दैट फर्दर इम्प्लीमेंटेशन कैन बी
इफेक्टिव। बट अब गवर्नमेंट इज़ नथिंग बट पॉलिटिशियंस, और पॉलिटिशियंस को चाहिए वोट बैंक, और वोट बैंक के लिए दे मेक पॉपुलिस्ट पॉलिसीज़, जैसे फार्म लोन वेवर, सब्सिडीज़, लाइव स्टॉक से रिलेटेड। अब ब्यूरोक्रेट अगर बोलता है कि ये वन टाइम के लिए सही है बट लॉन्ग टर्म के लिए इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट। बट अब ये जो पॉलिटिशियन है उसको भी पता है कि 5 साल से ज़्यादा शायद नहीं रहेगा। तो इफ द पर्सन वांट्स टू कम बैक अगेन, ही नीड्स टू इंश्योर कि वो पॉपुलिस्ट पॉलिसी लेके आए रेदर देन लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। एंड दस ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली चल रहा होता है, राइट? नो कैपिटल इज़ बीइंग डेवलप्ड, राइट? एंड ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो हो रहा है वो हर साल हो रहा होता है रिलेटेड टू पॉलिसीज़। देन ई गवर्नेंस इश्यू फ्रेमवर्क विल रिमेन द सेम। एक एक्स्ट्रा डायमेंशन आज रहेगा जो होगा टेक्निकल। एक्सक्लूजन ऑफ वल्नरेबल्स, राइट? कोरोना के टाइम में जब माइग्रेंट्स एक स्टेट से दूसरे स्टेट जा रहे थे, तो पीडीएस से रिलेटेड बेसिक फूड फैसिलिटी जो अवेल करना था उसमें डिफिकल्टी आ रही थी बिकॉज़ लैक ऑफ आइडेंटिफिकेशन, देन लैक ऑफ फंड्स और डिले ऑफ फंड्स, देन डिपार्टमेंट्स वर्किंग इन द silos. So these are the frameworks, right? For design, the framework is for coders, fail, and for implementation, right? Your code will be smart cog wheels. अब now if you remember this framework, आप at least 10 to 14 points generate कर सकते हो। लिखने आपको 6-7 ही मैक्स होते हैं, but still you will have the option to generate new points. So this is what you have to do, because वहाँ पर आप हर गवर्नमेंट की हर स्कीम याद करके नहीं जा सकते, not humanly possible. So that is why you should always have some framework related to the topics, right, which will help you save time, ठीक है? Think less and generate more. So what now? What you can do is कि हमने जो अप्रोच बनाया है, that we discussed कि गवर्नमेंट स्कीम पॉलिसी प्रोग्राम related to the welfare for the vulnerable sections के लिए this design and implementation framework can be used to analyze anything. It will act as a dimensional fodder points for you and it will save your time. Now what you have to do now, okay? So you can go through the PYQs, pick any one question and answer that question using the framework given, and if you prefer you can put it on the Telegram channel जिसका link description में होगा, and we can discuss in the next session if you guys write it, and it will be a good answer writing experience or an exercise. ठीक है, just start writing answers. वेट मत करो कि नोट्स रिवाइज करोगे, उनको परफेक्ट करोगे, ठीक है, करंट अफेयर से इंटीग्रेट करोगे, वैल्यू एडिशंस करोगे, उसके बाद लिखना शुरू करोगे। आपको पता भी नहीं है कि राइट नाउ व्हाट यू नीड और व्हाट यू लैक, और वो तभी पता चलेगा व्हेन यू विल स्टार्ट राइटिंग। सो आई होप you start writing by picking up a PYQ which is related to any of the government schemes or multiple schemes or policies, ठीक है, and use this framework to write the answer. Okay, so let's meet next time, and I am hoping कि at least I'll get one answer put in the group, the Telegram group, right? Name is still the evaluator UPSC, the Telegram group, या साथ में ही प्रिपेयर कर लेते हैं, ठीक है, बेहतर होगा, अकाउंटेबिलिटी मेंटेन रहेगी। सो लेट्स मीट द नेक्स्ट टाइम।